A very hearty good evening to everyone. Welcome back to Vagarth. Our next session engages with history as a living force, one that continues to shape constitutional values, political thought, and questions of social justice in contemporary India. Makers of modern Dalit history invites us to revisit ideas and institutions that have played a defining role in this journey. जिन्होंने सोच को नई उड़ान दी, इंसानियत को पहचान दी, उनके विचारों से बना ये दौर जहां बराबरी ने जुबान दी. We are having our author amongst us. We are pleased to welcome Dr. Guru Prakash Paswan sir, academic author and national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. With great respect, I invite our speaker to please grace the dais. Dr. Paswan is an assistant professor in the PG Department of Law at Patna University. His work focuses on the constitutional law, federalism, and social justice, as he regularly contributes to leading national platforms such as the Indian Express, The Print, a founding member of the Bihar Young Thinkers Forum. He has also represented India at academic and policy forums abroad. His recent writings engages closely with Ambedkarite thought and democratic discourses in India. Joining him, we are having our discussant, Dr. P.K. Biswas sir, a distinguished academic leader and institution builder with over 4 decades of experience. I invite our speaker to grace the dais. Please give him a big round of applause. Before joining Jagran Lake City University, Bhopal, as a Vice Chancellor, Professor Biswas served for nearly 30 years at the Indian Institute of Forest Management and has led premier institutions including LBSIM Delhi and IFMR Chennai. A sociologist by training, he has worked extensively in public policy, rural development, sustainability, CSR, and livelihoods with research and consulting engagements for national governments and international agencies such as the World Bank and UN bodies. This conversation will be moderated by Dr. Ramesh B. Shivagunde, Coordinator TLC NITTTR Bhopal. I humbly invite our moderator to please come on the dais. Please give him a big round of applause. Dr. Shivagunde brings over 40 years of experience in teaching, training, research, and consultancy in technical and vocational education. He has conducted more than 700 training programs across India and has contributed extensively to national level policy initiatives in engineering and vocational education. As we reflect on the making of modern Dalit history through law, policy, and political thought, I invite our speakers and moderators, authors, and discussants to begin this session. Over to you, sir. Mic check. Well, good afternoon to all and welcome to this session. This is especially for one of the greatest book recently developed, research-based book by our author, Dr. Guru Prasad and Sudarshan Rambhadran. Instantly, the book is became bestseller because this is the one book I read. It's a thoroughly researched book. The book has 3 components. इसके 3 भाग है. पहला भाग जो है प्रस्तावना कहते हैं वो रिसर्च बेस्ड है. और दूसरा भाग जो है 18 जो महापुरुष थे या महिलाएं थे जिन्होंने दलित के उत्थान के लिए प्रयास किया और समाज सुधार के लिए बिल्कुल काम किया, उनके बारे में संक्षिप्त में 18 छोटे चैप्टर्स है. और उसके बाद संदर्भ है जिसको हम रेफरेंसेस कहते हैं. ये रेफरेंस बड़े
ध्यान से चूज किया गया, इसका अभ्यास किया गया। ये बुक पढ़ने में बहुत ही सरल है। मुझे अनफॉर्चुनेटली बुक मुझे हिंदी में मिला, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। किताब हिंदी में मिला, मैं राह देख रहा था। किताब इतना बेस्ट सेलर है कि शाम तक मैं राह देख रहा था। कल तो आई गॉट रिसीव्ड द बुक फ्रॉम अमेजोन से, किताब मिला, वो हिंदी में मिला। तो हिंदी में किताब हमने उसको पढ़ा पूरा। जब पढ़ने के बाद ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बुक है वाचकों के लिए। ये एक आपका एक गहरा असर छोड़ता है। ये सामान्य किताब नहीं है बाकी किताब जैसा। इसका नॉन लीनियर, इसकी रचना नॉन लीनियर है ना। एक नॉवेल है, एक ग्रंथ के समान है। नॉन लीनियर किताब है। अलग अलग पैटर्न से सदियों से जो दलित पे जो अन्याय होता है, जो शोषित लोगों के लिए जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनका जो शोषण किया गया, ऐसे लोग जो हमें 4 वर्ण छोड़ के 5वें वर्ण के भी लोग, इन लोगों के लिए ये महापुरुषों, ये लोगों ने शुरू से कैसा कार्य किया, उसका विवरण है। एक उद्देश्य से किताब लिखा गया है। वो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको मेरे हिसाब से इंटरप्रेट किया। वो उद्देश्य जो है कि इससे किताब लिखने से बिना उद्देश्य समझे आपको प्रेरणा 2 मिलेगी। ये पहली प्रेरणा मिलेगी कि मेरे भी पहचान के ऐसे कोई व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कार्य किया लेकिन मिसिंग है, तो आपको तुरंत उसकी जानकारी के पीछे पड़ोगे। और दूसरा, जो जानकारी इन्होंने जो दी है, वो जानकारी में आपको लगेगा ये तो जानकारी दूसरी है। जैसा इस किताब में बाबू जगजीवन राम जो है, ये एक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट थे, एक योद्धा के तरह, एक रणनीतिकार ये थे। ये जानकारी मुझे भी नहीं मिली, ये जानकारी मालूम नहीं थी। बाबा साहेब आम्बेडकर ये इकोनॉमिस्ट, ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे, ये अर्थशास्त्रज्ञ थे। ये जानकारी यहाँ मिली। बची हुई जानकारी तो काफ़ी लोगों के पास है। 18 जो लोग हैं जिनके इन्होंने लिखे हैं, मैं उनके नाम पढ़ दूँ तो आपको थोड़ा स्मरण में रहेगा कि कौन कौन से नाम इस किताब में है। छोटी किताब है, 181 पेज का हिंदी में किताब है, और इतना छोटा किताब होकर भी ऐसा है। अब इस किताब में अय्यन काली एक केरल के थे, बाबू जगजीवन राम, दाक्षायणी वेणुयुधन, गुरम जोशुआ, गुरु रविदास, कबीर दास, काशीराम जी, के.आर. नारायण, नंदनार, रानी झलकारीबाई, योगेंद्रनाथ मंडल, वाल्मीकि, वेदव्यास, जनाबाई, संत जनाबाई, सावित्रीबाई फुले, सोयराबाई, उधम सिंह, भीमराव अंबेडकर, इतने लोगों का वर्णन दिया है। ये वर्णन ज़्यादातर ये फोकस में किया है, इन्होंने इतना संघर्ष किया है इस समाज के ऊपर आने के लिए। ये किताब एक उत्क्रांति, हम जिसको कहते हैं इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर, दलितों का इवोल्यूशन। पता नहीं ये टाइटल उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन दलितों का इवोल्यूशन हिस्टोरिकली, कम से कम वेदव्यास का नाम तब से लेकर समानांतर आज तक, एक स्वातंत्र के बाद भी इन्होंने कौन कौन से लोगों ने कैसा कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग भारतवर्ष के अलग अलग जगह पर इन्होंने किया। ये किताब राजकीय नहीं है, ये किताब एक प्योर एकेडमिक रिसर्च के लिए किताब है। तो ये किताब आप जरूर पढ़ लीजिए। आज आपके सामने इसके लेखक मौजूद है, इन्होंने बहुत रिसर्च करके किताब लिखा है, और हमारे साथ प्रोफेसर विश्वास है। अब मेरी ओर से मैं खुद इनको पूछना चाहता हूँ, किताब इन्होंने भी पढ़ा है, इन्होंने अंग्रेजी वर्जन पढ़ा है किताब का इनको मिला था, तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ ये किताब पढ़कर आपको कैसा लगा, और किताब में ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है, किस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा विथ पर्पस लिखा है, ये जरूर आप बता दीजिए सर। मेरे हिसाब से पहले we should ask our young author Guru Prakash to say a few things. Why did he write this book? What is the intention behind publishing such a interesting book? So let him say, then I think I will. दलितों के लिए
जो साहित्य है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो महाराष्ट्र में टनों साहित्य इसका उपलब्ध है पिछले 100 साल में। इतना साहित्य उपलब्ध होने के बाद भी इसी विषय पर ये लिखने का इसका पर्पस क्या है और इसका ये मोटिव कहाँ से आया, डॉक्टर ये है इनको तो आप प्लीज़ ये बता दीजिए हमारे वाचकों को। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साहित्य महोत्सव के आयोजक का आभार प्रकट करता हूँ, और हमारे साथ जो यहाँ मंच पे दो काफ़ी वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, और मैं आई फाइंड माई सेल्फ ग्रेटफुल एंड प्रिविलेज दैट बोथ ऑफ देम हैव रेड द एंटायर बुक। ये एक्सपीरियंस्ड हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स हैं, एकेडमिक हैं, थिंकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बट स्टिल दे टुक आउट टाइम एंड रेड द बुक। आई थिंक बोथ ऑफ यू आर एन इंस्पिरेशन टू यंग पीपल लाइक अस, और हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है सर, कि आपने इसके बावजूद इतनी साधना के साथ इस पूरे पुस्तक का अध्ययन किया है। हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, हम रील के ज़माने के लोग हैं, 20 सेकंड से ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते हैं। आप लोगों ने घंटों की अवधि में उस पुस्तक को समाप्त किया। शिवगुंडे जी ने हिंदी पुस्तक समाप्त कर दी, विश्वास जी ने अंग्रेज़ी पुस्तक समाप्त कर दी। ये मेरे लिए एक लेखक के रूप में एक सौभाग्य का विषय है। तो पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने एक पुस्तक की संरचना, पुस्तक का एक स्ट्रक्चर हमारे दर्शकों के बीच में रखा है, वास्तव में ये को-ऑथर्ड पुस्तक है, और मैं और हमारे परम मित्र सुदर्शन, जो कि समहाउ नहीं आ पाए हैं, हम लोगों ने साथ में इस पुस्तक की यात्रा, या हमारी मित्रता की यात्रा भी इस पुस्तक में ही दिखती है। एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि पुस्तक की सोच कैसे आई, इस पुस्तक को करना है ऐसा विचार कैसे आया। पहली पुस्तक है, हम लोग यंगस्टर हैं, और तब 10 साल पहले तो और भी विचार हमारे बन ही रहे थे, अभी भी विचार बन ही रहे हैं, अपने विचार की यात्रा में थे। तो सुदर्शन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और तंजावुर के रहने वाले हैं, तमिल ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं दलित समाज से आता हूँ, बिहार का पासवान समाज का हूँ मैं। हमारी मित्रता हुई, और मित्रता में ये बातें अक्सर होती थी कि भाई आरक्षण क्यों, रिजर्वेशन क्यों, रिजर्वेशन का आधार क्या है, रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, और तमाम हमारे आर्गुमेंट्स होते थे। उनकी एक विचार थी, मेरे अपने विचार थे। तो आई वुड लाइक टू समराइज इन अ वे दैट फ्रॉम बिकमिंग एन ardent opposer of सुदर्शन, considering his background, अगर उनके आप पृष्ठभूमि को देखें तो बहुत ही वास्तविक लगता है और स्वाभाविक लगता है। कोई भी विचार, कोई भी नीति, हमेशा उस पर बात, संवाद, चर्चा होती रहनी चाहिए, उससे वो नीति भी समृद्ध होती है। तो हम लोग साथ में आए, और ऐसे कई संवेदनशील मुद्दों पे हम लोगों ने साथ में काम करने का हमें अवसर मिला। पहला लेख हमने लिखा डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। हमारे ऐसे इंटेंस डिसएग्रीमेंट्स, डिबेट होते रहते थे। हमने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मतिथि पे 14 अप्रैल 2016 में हमने एक लेख लिखा, और उस लेख में हमने बाबा साहेब अंबेडकर के विभिन्न आयामों पे, उनका महान व्यक्तित्व है, वो वंचित समाज के नेता थे, वो संविधान के निर्माता थे, ये हम जानते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत उनके व्यक्तित्व के जो अनछुए पहलू हैं, द अनटच्ड डायमेंशंस ऑफ हिज पर्सनालिटी, लाइक हिज टाइम इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। न्यूयॉर्क जाते हैं वो, कोलंबिया में प्रोफेसर जॉन डेवी के संपर्क में आते हैं, और ये वो दौर है साथियों जब भारत के अधिकांश लोग यूके जा रहे हैं, बैरिस्टर बन रहे हैं, लॉ की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, और यहाँ आकर के अपना ल्यूक्रेटिव लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर इवेंचुअली राजनीति में आ रहे हैं। उस दौर में डॉक्टर अंबेडकर के मन में ऐसी कौन सी विचार थी जो उनको अमेरिका खींच के ले गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में वो जाते हैं, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, हमारे जितने युवा मित्र साथी यहाँ बैठे हैं, जब भी कभी जीवन में न्यूयॉर्क जाने का अवसर मिले, तो न्यूयॉर्क में शहर में ही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, वहाँ आप ज़रूर जाएं। और उसके जाने का कारण यह है, उस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के कैंपस में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है स्मिथ लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी के 500 वर्षों के इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति की मूर्ति वहाँ लगी है, और वो हमारे डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये अपने आप में एक
गौरवान्वित करने वाला हमें एक पल और क्षण देता है कि कोलंबिया के समय इतने संघर्षों के बावजूद उन्होंने, हालांकि ये दूसरे विषय पे मैं चला जाऊंगा, लेकिन मूलतः ये जो 18 नाम इन पुस्तकों में हैं, इन लोगों के योगदान, ये खुद वंचित समाज से आते थे, लेकिन हमारे संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए एक बुनियादी काम इन्होंने किया है। हम जब भी दलित विषयों को देखें, हमारी पुस्तक के पीछे की सबसे प्रमुख मंशा यही है कि हम जब भी दलित विषयों पे बात करें तो वो डिस्कशन पोलराइज्ड ना हो, इधर माई वे और हाईवे ना हो। कुछ संवेदनशीलता हम समझें, कुछ संवेदनशीलता वो समझे, क्योंकि संवाद का मौलिक आधार यही होता है। तो इसके निमित्त ये प्रासंगिक विषय है, कॉन्टेम्प्ररी है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, कुछ ना कुछ आंदोलन ज़रूर चलता रहता है। बट थ्रू द medium of this book, what we have tried to achieve is to establish a positive, academic, constructive and a solution oriented conversation around दलित इश्यूज। समय कम है, मैं और बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आग्रह करूँगा बिस्वास साहब और हमारे मॉडरेटर साहब से कि आप आगे की प्रकरण को लें। Thank you, Guru Prakash, for giving this context why you wrote this book. I think very interestingly, what they have done, as Dr. Sivagunde also has mentioned, there are 18 characters who have been chronicled here or featured here in this book. And one tagline I really was very impressed. It has been written, we are moving from incredible India to incredible Indians. They are incredible Indians because the way they have fought against subjugation, discrimination, and therefore the subaltern history, the history of oppressed, the history of the people below is extremely important. Why do we read history? That is because we also have to see what kind of social integration, social cohesion has taken place over a period of time. And interestingly, this book features saints like Ved Vyas, Ravidas, Kabir, and all these people, and there are a few other saints who have, and also of course we have intellectuals turned politicians like Ambedkar or K.R. Narayanan. Why? What is so important to know about them? Because history, when you read about their life stories, their struggle, the right from Balmiki, Balmiki is also, even today the Balmiki community people are employed as sweepers in many places and all that. So to read their stories, their history, and these are real life stories. This is not fiction. These are not fictional characters. These are real life stories. To feel inspired, to what has happened, why these people have been oppressed, and this has not stopped. It is not that this kind of book are need of the day, because you have to understand. And if you look at Indian demography, in 2011, since after that we have not had any census after 2011. In 2011, about 16.6% people were scheduled caste. Okay. According to a recent estimate in 2023, PEW, this has increased to 23%. So there is a substantial portion of the Indian population do belong to this category. And then if you look at the largest share, obviously is in Uttar Pradesh. But if you look at its sheer percentage, you'll be surprised to know that Punjab is the highest concentration of scheduled caste population in Punjab, in proportion to their population. Uttar Pradesh is a huge state. So if you look at Uttar Pradesh, Punjab, Bengal, West Bengal, I don't know why we call still West Bengal, already East Bengal is gone, we should call it Bengal. So West Bengal, then we have Kerala, we have Tamil Nadu, we have Andhra Pradesh. So these are the places where so many interesting stories are there. If you look at what are the kind of issues, and as Ambedkar said, or many other people who have said, education is the most important weapon to fight against such kind of discrimination. So empowering people with education was one of the prime responsibility. K.R. Narayanan, who was the first Dalit president of the country, he belongs to a community in Kerala.
they are subjected to inhuman treatment. Some of the communities were not allowed to walk on the road on which the other caste Hindus have walked. There are instances where it has been said such communities must maintain a distance of 78 feet from the Nayars and 124 feet away from the Nambudris. Even their chaya, the shadows should not fall upon them. There are instances where they are not allowed to even take bullock cart. Even some of them are agriculturalists, they are not allowed to plow the bullock cart. They are not allowed to walk on the road. And specifically, this is a very interesting book because it chronicles saints, it chronicles intellectuals, it chronicles politicians, and also the common people like Udham Singh. Udham Singh also belonged to that category where he was subjected to humiliation. Then he joined Ghadar party, and then of course he wanted to take revenge on Jallianwala Bagh massacre. And he joined Ghadar party, and Ghadar party was known that the advertisement said, "What is your reward? Death." That is the kind of advertisement were being done at that point of time. Udham Singh is one example, one youth. Now, how did he decide that he should rebel against and take revenge? And basically, if you look at every story has an important thing like also Ambedkar, as he said, he was in first writing was on Ambedkar, and Ambedkar was a person who talked about social democracy. Okay, and Kansiram interestingly talked about social equity, equitable distribution. In our constitution it says justice, liberty, equality, but equity you don't speak. It was these kind of people, he said, and then he made a very famous statement. I think I must quote it from the book, if I can see that. Just give me 1 minute. Yeah. Kansiram said, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी. What does it mean? Equitable distribution is according to number, and that proportional representation act came into being, election, all kind of things have happened, and then he formed Republican. He joined Republican Party initially. Then he said no. Why only SC community? All these people who are oppressed, even from other end, they must join, and he created Bahujan Samaj Party. There's another instance in how they fought, and then it created a history that for the first time one woman, Dalit woman, became the chief minister of a state, the largest state of this country. That is a kind of instance, that kind of struggle. And the women characters who are all here, they said, we have triple tragedy. What is that triple tragedy? We are poor, poverty, we are deprived, number one. Number two, what is the other tragedy? We are women. Again neglected. Third thing, we are Dalits. And that's why this is the kind of thing we have to fight against justice. So the struggle was against subjugation, discrimination, outcast. They were considered outcast. That's why he said Panchama Varna. After 4 Varnas, they are the last one who were supposed to, their life was supposed to serve others. And these are the kind of instances are there. And K. Narayanan, as president in Republic Day Parade 2001, he said openly in the public, he said, there is room for everybody to live. It is a very substantial statement if you read it carefully. There is room for everybody to live. So why you should discriminate? Why should you isolate? Why should you have this kind of punishment to them? And he rose. And incidentally, he was my vice chancellor when I was studying at JNU. And he was a career diplomat. He retired from Indian Foreign Service in 1978. After that, he was vice chancellor of JNU. In my master's degree certificate, his signature is still there. He's there. He has signed my MA certificate. And he demonstrated. And then, of course, he entered into politics. 1984, he was ambassador to US. Then he entered into politics. Then, of course, he was elected vice president. Then, of course, president and all that. Similar stories are about B.R. Ambedkar. Already everybody knows
But what are the things that lesser known characters like Ayan Kali in Kerala, who fought for their community, Puliyar community, for their rights to land. So if you look at the whole struggle has been for social dignity, right to the land, and of course, as Kansinam said, social equity. We hardly talk about social equity. Very convenient to ignore it, of course. It is not that we are not aware of it, but it is very convenient for us to ignore such things. And these stories, these struggles have been documented very well in this book. And therefore, it is a very interesting read. And this is one example. They have picked up 18 characters. But there could be many, many, many more such characters in this country, in different parts of the country. They have picked up people from where it is more prevalent, such characters. But also, there is another interesting thing that these saints were there, whether it is Ravidas or Kabir Das, Guru Ravidas or Kabir. They said, or there is another lady character who says, everybody has equal right to the God, access to the God. Why you should be denied? There are incidents, one lady was put before the temple doorsteps for many, many days, and finally she was allowed. So temple entry movement also was a great movement. And in fact, in Kerala, they brought in a legislation by saying that even non-Brahmins can be the priests of the temple. It's a good, substantial movement. I don't think in this part of the country we have not been able to do that. So it is a question of, and again, what is the instrument? Education, access to education, and empowerment through various kind of rights. So, and there's another interesting character, if you read, I'm just saying, I can say that. Jogendranath Mandal from Bengal, undivided Bengal I'm talking about, and he was minister in undivided Bengal two terms. He was instrumental in, then again it will be very interesting to know for you that he also was minister in Pakistan. After 47, undivided Bengal, 1936 to 46, he was a minister in undivided Bengal. 47, after that, he became minister in Pakistan. But very quickly he was disillusioned because he thought that he would be able to fight for the adequate representation of the Dalits in the assembly or legislature. But he couldn't do that. So he's resigned, and that his resignation letter is a wonderful document to read and research. And he was instrumental in to bring B.R. Ambedkar to Bengal. You'll be surprised to know that Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from Bengal, not from Maharashtra, not for Madhya Pradesh, but he was elected from, and Jogendranath Mandal played a very crucial role. And Jogendranath Mandal was very close to Netaji Subhash Chandra Bose as well as other leaders at that point of time, but he did not join Congress at that point of time. So such kind of instances are there. And also Savitribai Phule, I think all of you are aware of this lady, and she was the one who fought, and she was the first headmistress of a school established. And Savitribai Phule again specifically worked for the empowerment of women, which is very, very important. Even today you see the difficulties women face. In SDG goal number 5, Sustainable Development Goal, we still talk about gender equality. This is a phenomenon not only in India, it is worldwide. Please don't think that only in India we have this kind of problem. This is there in US, this is there in Europe, this is there in Southeast Asia, there is in Asia Pacific. So, and these characters, there are 5 such women characters in this book: Savitribai Phule, Jona Bai, Jhalkari Bai, and Sora Bai, and all that. Think about them. They had fought in 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century. And please remember, this fight is not over, even in 21st century. We still have this problem plenty. So I'll stop here for the time being, because then again we'll have another round. एक संघर्ष जो
शुरू से था, उस संघर्ष का एक इतिहास है। गरीबी, पॉवर्टी इज कंसिडर्ड ए कर्स। हम पॉवर्टी को, गरीबी को भगवान का शाप कहते हैं, बट ये मानव निर्मित है। ये शाप तो विश्व के सभी गरीब लोगों ने झेला है। ज़्यादातर दलित समाज जो था सदियों से अपने देश में, ये गरीब, इसमें से जितने लोगों का देखो वो गरीब मिलेंगे शुरू में। एक शाप है, लेकिन दूसरा शाप जो है यही हमने तैयार किया है, पूर्वजों ने तैयार किया है। वो शाप जो है वो विभाजन। एक संघर्ष करना पड़ा कि गरीबी से, अभी भी संघर्ष जो गरीब रेखा के पहले है, ये संघर्ष वही जानता है जो गरीब में पैदा हुआ है। जो गरीब ने पैदा नहीं हुआ उसको ये संघर्ष मालूम नहीं रहता है। वो सिर्फ पढ़ता है, देखता है, सिनेमा देखता है और चर्चा करता है। जब तक आप दलित में पैदा नहीं होते हैं तो दलितों का संघर्ष आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक संघर्ष इसका है, एक संघर्ष दूसरा है, और तीसरा सबसे बड़ा संघर्ष है सम्मान की। अब दोनों संघर्ष जीत भी जाते हैं तो सम्मान के, ये तीन जो है, इसका जो युद्ध जो है, ये तीन युद्ध का शुरू से लिखा है। चाहे महाभारत का कर्ण हो, चाहे आप शुरू से, और इसका मध्यकालीन है, और अभी रिसेंट अभी भी देखा गया तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ये संघर्ष चालू है, एस्केलेट हुआ। इसमें एक इवोल्यूशन हुआ जिसको हम कहते हैं उत्क्रांति। इसको एक उत्क्रांति हुआ। ये अलग अलग फॉर्म में, अपने अपने इतिहास में अलग अलग फॉर्म में ये विजेता लोगों की कहानी है, अलग अलग फॉर्म में। उस वक्त महर्षि व्यास ने जो किया और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो किया, ये अलग अलग फॉर्म में एक संघर्ष था। अब ये संघर्ष जो है इसका एस्केलेट हुआ, मतलब इसकी गति जो है ये पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये अलग फॉर्म में दिख रहा है, और जो युवक है उनमें ज़्यादा उन्माद रहता है, युवकों में ज़्यादा एनर्जी रहती है, और वो अभ्यास कर रहे हैं। ये पुस्तक इसलिए प्रेरणा देगी कि अभ्यास की दिशा निर्धारित करेगी। नहीं तो हमें हमेशा लगता है कि ये जो युद्ध है ये अगेंस्ट एक सवर्ण, बिल्कुल सवर्ण के साथ युद्ध नहीं है। ये हमको कभी कभी मिसअंडरस्टूड, सी समटाइम वी मिसअंडरस्टूड द लिटरेचर। जैसा विश्व में सबसे मिसअंडरस्टूड लिटरेचर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जितने बार पढ़ोगे उतना बार आपको उसका, दूसरा महाभारत है, जितने बार पढ़ोगे आपको दूसरा ही तीसरा ही पता लगेगा, है ना। महाभारत के नायक तो हर एक को नायक बना के बड़े बड़े किताब लिखे, मृत्युंजय लिखा, इस कर्ण को लेकर, शकुनी को लेकर लिखा, भीष्म को लिखा, और कृष्ण भगवान को लेके कितने तो लिखा। चलिए ऐसा ही है इसमें, और आपको बिल्कुल ये प्रेरणादायक किताब है। हमने कई किताब पढ़े, लेकिन ऐसा किताब बहुत कम हाथ में आया। दो प्रकार के दलित साहित्य है। एक साहित्य जो है अपने ऊपर हुआ मेरा खुद के संघर्ष के बारे में है। चाहे मराठी में मैंने बहुत पढ़ा, नामदेव ढसाल का ले लो या किसी, मैंने खुद कैसे संघर्ष करके ये पार किया। दूसरा टाइप है, और इन्होंने कैसा अत्याचार, इन्होंने कैसा सप्रेस किया, और इन कारणों से हम बड़े नहीं हो सकते। ये दोनों इम्पॉर्टेंट टाइप के साहित्य हैं, लेकिन ये साहित्य अलग है। इसमें दोनों के अलावा भी बहुत कुछ अंदर गहरा लिखा है। ये किस उद्देश्य से लिखा है ये नहीं है। इनमें भी ऐसे प्रेरणादायक पुरुष हुए, उनका वो देखो। कई बार ऐसा होता है, जैसा हमने बाबा साहेब को हम इंटरप्रेट करते हैं, ये दलितों के मसीहा है, लेकिन दलितों के मसीहा नहीं थे। एक गैर दलित को भी मसीहा है वो। गैर दलित के लिए उन्होंने गैर दलित ऐसा डिवीजन नहीं है। जाति, अभी हमारे गुरु प्रसाद से बोल रहे थे, जाति समस्या नहीं है। जाति के जो हम एक कर दे वो समस्या है, वो समस्या है ही नहीं। जातिवाद जो हम स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ वो स्ट्रेटिफिकेशन में है। और दूसरा जो है, कई सिद्धांतों में ये पता लगा कि जैसा है ना, मेलविन का किताब है उसमें लिखा है द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो स्ट्रेटा होते हैं सोशल, वो स्ट्रेटा वैसे ही प्रोग्रेस करते हैं। इंटरनल प्रोग्रेस जो है, एक स्ट्रेटा से दूसरे से तीसरे, ये कठिन होता है।
हमारे भारत में गरीब को 3.5 जनरेशन लगते हैं। एक गरीब चाहे दलित हो या दूसरा हो, एक ब्राह्मण गरीब क्यों नहीं हो, वो गरीब को अपना लेवल क्रॉस करने के ऊपर के लेवल जाने के लिए 3.5 जनरेशन लगते हैं एज कंपेयर टू दूसरे देश। तो इससे बहुत ही प्रगति लाना है, इसको जल्दी पूरा करना है और ये किताब बहुत प्रेरणादायक रहेगा हमें। अभी भी किताब मैंने पूरा एक बार पढ़ा तो और मेरे को कई बार पढ़ूंगा तो मुझे और समझ में आएगा, कुछ रेफरेंसेस मैं पढ़ूंगा। मैं फिर हमारे लेखक को कहते हैं, इन्होंने अपना एक नया भूमिका इसमें, इसको हम रोल कहते हैं, एज ए ऑथर। 2 ऑथर है, इनमें एक ऑथर का एक बहुत बड़ा अच्छा भूमिका निभाई है और एक दिशा निर्देश दिए। तो हमने उनको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका उस एंगल से हम बता दीजिए, बिकॉज हमेशा पुअर एंड रिच, हैव और हैव नॉट का जो स्ट्रगल है उसमें हम दलित वर्सेस दूसरा स्ट्रगल में हमेशा हम को पैरेलल समझते हैं उसको, कुछ लोग उसको पैरेलल नहीं समझते हैं। तो ये जो है दोनों स्ट्रगल जो है गरीब से ये बनना, गरीब से अमीर बनना या समृद्ध बनना, समृद्ध भारत की जो व्याख्या है, ये अतुलनीय भारत जो है ये हमेशा अतुलनीय बने रहे और इसमें उसको कैसा करना ये भी किताब में लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। तो मैं उनको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये किताब में कई जगह पे हुआ है, उसका थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदरता से आप दोनों ने पुस्तक का जो सार है यहाँ पे रखने का काम किया है। ब्यूटीफुली यू हैव आइडेंटिफाइड फ्यू आइकॉन्स। और मैं उसी दौरान देख रहा था सावित्रीबाई फुले जी का, जिनकी जन्म जयंती अभी 3 जनवरी को निकली है। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में थॉमस वुल्फ ने लिखा है कुछ, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एंड दिस इन अ वे sums up and summarizes the contributions of Savitribai for all of us. He writes, and I quote, Indian women owe her. For in today's world, whether an Indian schoolgirl reading English, an Indian woman who reads, an Indian woman who is educated, or an educated international Desi woman, her education as an Indian female grows from the garden planted by Savitribai Phule. आज के दौर में हमारी जितनी महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं वो कहीं ना कहीं ऋणी हैं सावित्रीबाई की, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये इस शोध के दौरान हमारे बीच में आया था। दूसरा एक छोटी सी एक प्रसंग है जो मुझे आपके बातों को जब मैं सुन रहा था मेरे ध्यान में आया। आपने केरला की बात की और केरला में 2 प्रमुख ऐसे समाज सुधारक हुए कई हैं, लेकिन हमारी पुस्तक की दृष्टि से 2 प्रमुख ऐसे रहे, अयंगली जी और नारायण गुरु जी। अयंगली जी का आंदोलन बुलक काट आंदोलन भी जिसको हम कहते हैं, और आप समझिए ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 100 वर्ष 125 वर्ष पुरानी ही बात है कि एक विशेष वर्ग के लोगों को एक विशेष जाति से 64 फीट दूर रहना है, दूसरी जाति से 128 फीट दूर रहना है। ये हमारे समाज की वास्तविकता, ये हमारे समाज का यथार्थ रहा है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स भी रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जो इन कुरीतियों के खिलाफ भी लगातार लड़ती रही हैं। केरला का एक प्रसंग जो मेरे ध्यान में आ रहा है, वहाँ पे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की महिलाएं थी उनको अपर बॉडी कवर करने पे टैक्स देना पड़ता था, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक बड़ा ही प्रेरणादायक किस्सा जो मेरे ध्यान में आता है वो यह है कि एक बार, और इन 2 महिलाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन 2 महिलाओं के नाम पे आज भी केरला में मंदिर बना हुआ है। इन दोनों ने अपर बॉडी को कवर नहीं किया था। टैक्स कलेक्टर्स आए और कहें कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप इस वर्ग की आती हैं। वो कम्युनिटी का नाम इड़वा है, द स्पेलिंग इज EZHVADA, द प्रोनाउंसिएशन इज इड़वा। तो इड़वा समाज की महिलाएं थी, उन्होंने ब्रेस्ट टैक्स के
रूल को डिफाई किया और कहा कि हम नहीं देंगे, कहा कि आपको देना पड़ेगा। उनके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। वो कहे ठीक है हम पैसे लेके आते हैं अंदर से। वो अंदर गई एंड उस महिला ने शी स्लैश्ड हर ब्रेस्ट and then it was a way for her to make a statement that even now are you going to levy this breast tax on me. So the revolution friends, हम लोगों को ऐसी पुस्तक या ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील इसलिए भी रहना है क्योंकि एक सावित्री बाई थी, केरला में एक महिला थी जिन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ी और वो सर्वोच्च त्याग तपस्या बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने। अयंकली हुए, नारायण गुरु हुए, बाबा साहेब अंबेडकर हुए, बाबू जगजीवन राम हुए, कांडे, ये मात्र किसी समाज वर्ग जाति के महापुरुष नहीं है। इनके विरासत पे, इनकी लेगेसी पे हर एक भारतवासी का उतना ही हक है जितना किसी और का हक बनता है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। पॉलिटिक्स के बियॉन्ड, राजनीति के परे इन विषयों पे एक सार्थक चर्चा कैसे हो, इस पुस्तक के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है। It's a effort which is still in process, but I'm sure this book is going to be a journey for all of us here. 18 ऐसे महापुरुष, महानायक, महानायिकाएं, वो हमारी झलकारी बाई होती हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के सेना में होती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों से उनको मिटा दिया जाता है। इतिहास के पन्नों से ऐसे वंचित समाज से आने वाले महापुरुषों को क्यों मिटाया गया, ये एक अलग सत्र का विषय हो सकता है, ये एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स का विषय हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ टुडे वी हैव द एजेंसी, वी हैव द ऑटोनॉमी, वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी हैव द फ्री विल टू एंकरेज एंड स्टार्ट सम स्कॉलरशिप। एंड इन दिस हॉल, इस सभागार में मैं वो उत्साह, वो सकारात्मकता देख रहा हूँ, आपकी आंखों में देख रहा हूँ, वो संवेदनशीलता देख रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों पे आज लोगों में एक जागरूकता है और एक क्यूरियोसिटी भी है। मैं आश्वस्त हूँ और आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में ऐसे और पुस्तकें लिखी जाएंगी और पास्ट की, हमारे भूतपूर्व में ऐसे जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी महानायक हुए हैं, इनके योगदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Just final few words I'll say. As that lady he is referring was Dakshayani. She was the lady first to put cloth on the upper body, and also she was the first lady to be elected in the Constituent Assembly. And that is the kind of a power that those women had. So that's very interesting. So I thought I should add this to this. सभी हिंदू समाज पूजा करता है, उसके मंदिर भी बनाए। इन्होंने बोला 2 टेबल। हाँ। मैं थोड़ा समय की कमी है, मैं आपके प्रश्न लेने चाहिए। बिल्कुल प्रश्न होंगे। एनी ऑब्जर्वेशन, एनी क्वेश्चन? Yes, yes. That's true. प्लीज। Hello sir, good morning. Good afternoon actually. So I am Yati and here's my question. Actually, आज जो government contemporary initiatives ले रही है, जैसे कि हमने देखा है that initially आपने explain बहुत अच्छे से करा, first of all, जो दलित ने struggle
It's a very interesting question, and I appreciate the curiosity and the keenness with which you have asked this question. But I would urge you to have a bipartisan perspective on this. In the sense, when Dr. Ambedkar he drafted the constitution, and he says, and I quote him, that on 26th of January 1950, as a nation, we are going to enter into a life of contradictions. We will have equality in politics with the principle of one person, one vote, but we will have gross inequality in our social and economic life. These are the words of Dr. Ambedkar, which I think still resonates. To say that untouchability exists or does not exist, there is data which suggests maybe the form of untouchability would have changed. छुआछूत प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये तमाम घटनाएं आज भी हैं. आज भी दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के भारत में हमें ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि तमिलनाडु में एक दलित समाज के लड़के ने हाथ में घड़ी पहनी, उसका हाथ काट दिया गया. मध्य प्रदेश में कोई बारात लेके जा रहा था तो घोड़ी पे उसको हेलमेट इस कारण पहनना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर पत्थरबाजी ना हो. ये एक पक्ष है. बट योर क्वेश्चन दैट वेदर रिजर्वेशन शुड बी इंक्लूसिव और नॉट, दैट इज अ पॉलिसी क्वेश्चन, and I'm sure the Supreme Court of India on multiple occasions have said that there must be a subcategorization. आरक्षण के अंदर भी उपवर्गीकरण के माध्यम से जिन वर्गों तक लाभ नहीं पहुंचा है उन तक कैसे पहुंचे. There is a genuine policy motive, there is a genuine effort on the part of government and the judicial process, which I think will happen eventually. But as of now, instead of getting agitated, we should have the other side perspective as well. Democracy is run by institutions. Institutions must be representative. क्या हमारे institutions में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है? ये प्रश्न है. एक स्टडी है 2006 की, बीजी उनियाल पायनियर के वरिष्ठ पत्रकार थे. बहुत एक उपयुक्त स्टडी है. उन्होंने कहा कि आज भी भारत के मीडिया संस्थानों में, in the media institutions, 96% of the senior editorial position is being represented by only one community. ये पढ़ सकते हैं आप, ये बीजी उनियाल की स्टडी है. So the idea is to make the institution socially representative, one that reflects social diversity, and one where your voice is not unheard. आपके वॉइस और आपके स्वर को भी जहाँ बुलंदी मिले और महत्व मिले, मुझे लगता है कि वैसे संस्थानों की हमें आवश्यकता है. बट आपकी प्रश्न और आपकी संवेदनशीलता से मैं समझता हूँ, बेहतर कैसे करें ये हमारा प्रयास है. I think we'll take one last question. सर मेरा नाम उद्यान से, मेरा प्रश्न गुरु प्रसाद सर से है. प्रकाश, गुरु प्रकाश नाम है हमारा. प्रकाश सर से है. सर अभी आपने जो इतिहास लिखा व्यापक रूप से दलितों को लेकर के, हमको पता है कि उनके साथ बहुत व्यापक स्तर पर शोषण हुआ, बहुत कालखंड तक हुआ और जो अभी भी कहीं कहीं हमको दिखाई देता है. लेकिन एक शब्द जो दलित बार बार दिमाग में आता है, जिसको दलन करना हम सुनते हैं, तो वो शब्द से कहाँ तक हम न्याय कर रहे हैं? हमको इस शब्द को बदलने की आवश्यकता, आप विधिवेत्ता हैं तो इस शब्द को बदलने की आवश्यकता है. हम बापू के हरिजन को भी ले सकते हैं, पूज्य महात्मा गांधी के, और राम के रामराज्य तक भी जा सकते हैं. तो इस शब्द को बदलना पड़ेगा कि हम इस मानसिकता से बाहर निकलें, और उनके सम्मान के लिए शब्द पर भी जरूरी है. बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका भैया. और देखिए, हर शब्द की अपनी यात्रा होती है. एवरी वर्ड हैज इट्स ओन जर्नी. कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नथिंग कॉल्ड दलित. संवैधानिक रूप से दलित शब्द का कोई महत्व नहीं है. इट्स शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति. दलित शब्द का यदि आप एटिमोलॉजी या इतिहास देखेंगे तो ये महाराष्ट्र से आता है. दलित साहित्य से इसकी शुरुआत होती है. बहुजन एक समय चला, हरिजन एक समय चला, वंचित एक समय चला, लेकिन वेदर वी लाइक इट और नॉट, आज दलित समाज में दलित शब्द को लेकर के एक स्वीकार्यता है और ये समाज इस शब्द में अपने स्वाभिमान की प्रतिध्वनि देखता है, एक एस्पिरेशन देखता है, एक असर्शन देखता है. ये शब्द की प्रासंगिकता समय पे भविष्य में रहेगी या ना रहेगी, इसका मैं कोई भविष्य का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये शब्द, ये सेंटिमेंट, ये महत्व दशकों में बदलता है. और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में आप इसमें भी कुछ परिवर्तन ज़रूर देखेंगे. जो आपकी मंशा है बहुत ही काबिले तारीफ है और सकारात्मक है कि भाई हमारे समाज में हमारे प्रकार के लोगों में ही ये दुर्भावना क्यों आए.
लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें एक एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में मैं देख पा रहा हूँ. थैंक यू. धन्यवाद. I think it is all the more important from the JNG perspective. I think you need to read quite a lot. You have to go back and see what is happening. That is why this is one book on Dalit modern history. There can be several such books. And in fact, in JNU they started this tradition of, moving away from kings and queens and samrajyas and all that to the history of the commoners. That's very, very important. You need to understand what has happened in the past. So only when that is coupled with facts, and that will give you a perspective why and how it is happening and what we should do. That will be very interesting. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. आपने काफ़ी तेज़ी से कॉम्प्रिहेंड किया ना. बिल्कुल इसको आप पढ़िए तो आपको और दिशा मिलेगी और बहुत ही जल्दी आप इसमें इस साहित्य में खोएंगे और आपको प्रेरणादायक बुक ही मिले. दबाव के कारण हम अभी हमारा समाप्त कर रहे हैं और थैंक्स BLF फॉर प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटी. एंड any other comment and observation? So I am going to close We it. could, Huh? we could any other thing. We could do Okay. it. We could do it outside. Yes, we are running out of time, Okay. and therefore, We are there in the author's launch. We can come and discuss. Okay. I request join all of the speakers. The session was very insightful, and the discussion reminds that Dalit history is not static. It is shaped continuously through constitutional ideas, intellectual engagement, and democratic participation. Revisiting these narratives helps us better understand both the promises and responsibilities of our republic today. Thank you for the insightful discussion. As we conclude this session, I invite Brigadier Sanjay Agrawal, a member of society, to present the memento to our esteemed speakers. Can we please have a big round of applause for the speakers as well as Brigadier Agrawal. I would also I'm going on in a minute. और आपसे माफ़ी इसलिए चाह रहे हैं आप सभी से कि देखिए समय स्कूल में भी समय चलता था ना, क्योंकि अब अगला सेशन भी है. तो आई नो वी वर अनफेयर, आपके 10 मिनट गए, लेकिन लाइफ में ये भी होता है. तो आप आए उसके लिए बहुत धन्यवाद. a huge round of applause. Thank you to our speakers for joining at Wagat. As we conclude this session, this artwork is created by Padma Shri artist Durga Bai, which symbolizes the harmony between inner wisdom, human experience, and creative expression, echoing the spirit of today's dialogue. To our speakers, thank you for sharing your insights, experiences, and reflections.